Hare Krishna. So we welcome all the devotees in our today's Sunday morning Vrinda Gardens youth class. So we are going through On the Way to Krishna. This is a wonderful book given by ISKCON founder Acharya S.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. This was one of the early days books which Srila Prabhupada has published. And this is very wonderful book to be fixed in our Krishna consciousness, to be fixed and to progress gradually in our Krishna consciousness. So, children, can anybody remember up to which we have studied in our last class? Aditya, voice is not clear. Hare Krishna. The background noises are coming. If there is any background noise, keep yourself muted and somebody else can unmute and let us know up to which we have studied. As far as I remember, we should start from this, the process for establishing Krishna consciousness. Am I right? What happens? Nobody is talking. Hare Krishna. Prabhu, yes, Prabhu, yes. Avinash, हाँ प्रभु from here only? इधर से चालू होगा आज? हाँ 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 प्रभु So let us do our Mangalacharan. You can also unmute if there is no background sound and join me in reciting the Mangalacharan. Mangalacharan is very important because by reciting Mangalacharan, we invoke Lord's mercy, Lord's blessing. Okay. So let us start the class with Mangalacharan. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namo Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupam Kada Mahyam Dadati Shapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Jutapadakamlam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Shagrajatam Sahagana Raghunathan Sajivam Sadaitam Savadhutam Parijana Shahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhan Nitamscha Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanto Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesho Shunyavadi Pasyatya Deshatarine He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Nanda Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्ण नमो वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण. So here Sri Prabhupada is writing. Let us read. Somebody can read.
Muskan, can you read? Is it visible to your screen? I think. नहीं प्रभु जी, ठीक से नहीं दिखाई दे रहा। ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। Why it is so? Stop sharing and share it again. Now it is better or it is same? Muskan? What happened? Aditya, Avinash, Bhargavi, is it same or it is not very, uh, is it readable or not? यस प्रभु जी। It is readable? हाँ सर, हाँ सर। Yes, so anybody can read. Aditya, you start. Start reading. दोनों क्यों? ये दोनों आ रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा है। पढ़ा नहीं जा रहा है? अच्छा ठीक है, मैं बड़ा कर रहा हूँ, एक सेकंड। अरे यार, अभी देखो, इज इट बेटर? इज इट बेटर? व्हाट हैपेंड? कोई पढ़ नहीं रहा है, क्या हुआ? कोई तो पढ़ो। दिखाई नहीं दे रहा है क्या ठीक से? आदित्य? सर ये इधर से द प्रोसेस फॉर एस्टैब्लिशिंग, हाँ, दिख रहा है ये द प्रभु जी। प्रोसेस फॉर पढ़ो ना, कोई एस्टैब्लिशिंग तो इधर पढ़ो। से ना। चालू तो करो। हेलो सर। आदित्य, मुझे आदित्य पढ़ रहा है। अच्छा ठीक है, पढ़ो आदित्य, पढ़ो। बाकी सब म्यूट में रहो। ठीक है, पढ़ो। The process for establishing oneself in real happiness is the process of Krishna consciousness. By Krishna consciousness, we can gradually develop our real intelligence and naturally enjoy realizing spiritual happiness as we make spiritual progress. As we begin to realize spiritual happiness, we proportionately abandon material happiness. As we make progress in understanding the absolute truth, we naturally become detached from this false happiness. If somehow or another one is promoted to that stage of Krishna consciousness, what is the result? Stop. Thank you, Aditya. So here, very important point Prabhupada is explaining that this process for establishing oneself in real happiness is the process of Krishna consciousness. So the chapter name is True Way to Happiness, isn't it? True way to happiness or in search of happiness. What is the way to having permanent or real happiness? Prabhupada is using a word real happiness. सच्चा सुख किधर है? जो सुख फॉल्स है उसके बारे में प्रभुपाद नहीं बोल रहा है। कोई अगर फॉल्स, अगर झूठा सुख के पीछे, झूठा आनंद के पीछे भागते रहेगा तो उसके लिए कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नॉट द राइट प्रोसेस। जो रियल सुख के पीछे भाग रहा है,
एक मिनट, थोड़ा मेरा लैपटॉप में एक प्रॉब्लम हो रहा है, उसको रिसेट करना पड़ रहा है। एक बार थोड़ा वेट करो, एक सेकंड। शेयरिंग स्टॉप एज दिस सेशन इज क्लोज्ड। ठीक है, वो रिसेट करने दो, वो होने दो। ओके, अभी स्क्रीन शेयर। हाँ, तो मैं जो बोल रहा था, वी कैन कंटिन्यू अवर क्लास, ओनली वी कैन नॉट शेयर इट, नो प्रॉब्लम। So here Prabhupada is telling that if somebody is searching for real happiness, he if somebody is searching for real happiness, he need to come to Krishna consciousness. Without coming to Krishna consciousness, one cannot become really happy. Now, how? By coming now the question comes. Now, immediately, as soon as we come to Krishna consciousness, we will become happy? No. We need to follow the Krishna consciousness as prescribed by Srila Prabhupada, as prescribed by our predecessor acharyas. Without doing that, we cannot become happy in Krishna consciousness suddenly. We need to follow the process. For an example, suppose you have been given a seed of mango tree, of mango. Now, can you derive the fruit mango from that seed immediately? कौन बोल सकता है? हम लोग कर सकते हैं? एक मैंगो सीड तुमको दे दिया और बोला आज तुमको मैंगो सीड दिया, कल मेरे को ये सीड से मैंगो निकाल के दो, होगा ये? इज इट पॉसिबल? नहीं प्रभु जी। नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये मैंगो सीड से मैंगो आएगा, मैंगो सीड का अंदर मैंगो है, मैंगो इज देयर, वेरी जूसी स्वीट रेलिशेबल मैंगो इज देयर, लेकिन अभी वो मैंगो दिख रहा है? Now we cannot see mango. Mango is not in our visibility. But we know by the knowledge that from this seed mango can come out. But for that we need to follow a process. We need to first of all उसको ठीक से मिट्टी में, प्रॉपर मिट्टी में, ऐसे नहीं कि कोई भी जगह में मिट्टी में, कोई भी टाइप का मिट्टी में हम लोग उसको लगा देगा तो मैंगो आ जाएगा, नहीं। प्रॉपर मिट्टी होना चाहिए, प्रॉपर मिट्टी में उसको लगाना पड़ेगा। उसके बाद एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में उसको रखना पड़ेगा। उसके बाद उसको टाइमली पानी देना पड़ेगा। उसके लिए और जो न्यूट्रिएंट्स है, वो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स जो भी है, गोबर खाद, फर्टिलाइजर, नेचुरल मैन्योर जो भी है, जो एक मैंगो ट्री बनाने के लिए जो देना पड़ता है वो देना पड़ेगा। उसके बाद धीरे 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 वो बढ़ेगा, उसको प्रोटेक्शन भी देना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे जानवर आएगा उसको खा सकता है। तो ऐसे हम लोग उसको प्रोटेक्शन देते 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 टाइम देना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको टाइम देना पड़ेगा, साल भर टाइम देना पड़ेगा। बहुत साल लगता है एक बड़ा आम का पेड़ होने के लिए। तो वो टाइम देने से धीरे 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 वो पेड़ में कन्वर्ट होगा, उसके बाद उसमें फल आएगा। तो ये है प्रोसेस। तो सिमिलरली कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोसेस इज ऑल्सो नॉट एन ओवरनाइट और इंस्टेंट प्रोसेस। ये कोई जंक फूड नहीं, फास्ट फूड नहीं, हम लोग जाके मार्केट से खरीद के लेके आ सकता है, नहीं। हमको ये समझना है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोसेस इज अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस, साइंटिफिक प्रोसेस, scientific process, and you need to we need to nurture it. So and for nurturing we need to include ourselves in a culture of nurturing, and वो culture of nurturing हम लोग जितना करेंगे, हम लोग को इच्छा होना चाहिए। देखिए ये हम एक मैंगो का जो बीज जो लगाता है, उसको मन में इच्छा होता है कि एक दिन मेरे को बहुत सुंदर मैंगो का फ्रूट्स, आम का फल मेरे को मिलना चाहिए। ये इच्छा उसका अंदर में रहना चाहिए, तो ही जाके वो बाकी काम करेगा।
अगर हमारा इच्छा ही नहीं है तो ठीक है, एक दिन कोई दिया था मैंगो पेड़ लगाने के लिए बोला था, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, तो उसमें हम लोग केयर केयर लेगा क्या? नहीं लेगा। We will not be careful in taking care of that, nurturing that mango seed into converting into a big tree from which we will get very relishable sweet mango. तो सिमिलरली कृष्णा कॉन्शसनेस में हमको कृष्णा कॉन्शसनेस को आगे लेके जाने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। कुछ नहीं करके हम लोग ऐसे नहीं करते। तो इसलिए प्रोफेसर बोल रहा था कि हमको ये कृष्णा कॉन्शियसनेस करने के लिए जो बाधा है क्या है, हमारा जड़ जागतिक मेटेरियल कॉन्शियसनेस इज द बाधा, इज द इम्पेडिमेंट। तो वो इम्पेडिमेंट में कैसे ओवरकम कर सकते हैं? उसको ओवरकम करने के लिए जैसे बीज के लिए बाधा क्या है? बाधा है वो बीज को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, प्रॉपर सॉइल नहीं मिलेगा, प्रॉपर लाइट नहीं मिलेगा, सनलाइट, प्रॉपर रेन वाटर नहीं मिलेगा। इफ दोज थिंग्स आर नॉट गिवन, देन वो फिर वो बीज को पुष्टि नहीं मिलेगी। तो सिमिलरली हम लोग अगर ये पोषण मिलने, कृष्णा भक्ति में पोषण मिलने वाला जो चीज है वो चीजें हम लोग नहीं करें, हम लोग अपना दुनिया में रह जाए, तो हम लोग अपना दुनिया में रह जाएंगे, कृष्णा का दुनिया में आ नहीं सकते, क्योंकि हम लोग आने के लिए राजी नहीं है, हम लोग कुछ कर ही नहीं रहा है। तो कुछ करना पड़ेगा। उसमें क्या है? एक है चैंटिंग करना है। हम जितना जितना कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे जाएंगे, जितना वो आम का पेड़ में जितना हम लोग पानी डालेंगे, उतना उसका पानी नहीं आने का संभावना कम हो जाएगा। जितना उसका अच्छा सॉइल रहेगा, उतना खराब सॉइल का प्रभाव उससे वो मुक्त हो जाएगा। जितना अच्छा लाइट रहेगा, उतना कम लाइट मिलने का पॉसिबिलिटी कम हो जाएगा। ये तो सिंपल सा बात। तो सिमिलरली हमको भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे जाना है, तो हमको ये मानना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा कि हम लोग का जो जागतिक जो चेतना है वो चेतना कितना कम होगा जितना हम लोग कृष्ण भक्ति में आगे जाएंगे। कृष्ण भक्ति करने के लिए जो जो चीज हमको बोला जा रहा है वो जितना हम लोग करेंगे, उतना हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे हम लोग जाएंगे। तो उसके लिए पहले जो काम है वो काम है कृष्ण कॉन्शियसनेस में हम लोग को रेगुलर प्रभुपाद का ग्रंथ थोड़े टाइम के लिए 15 मिनट, 20 मिनट, इफ पॉसिबल हाफ एन आवर हमको पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद का लेक्चर सुनना चाहिए, हरिनाम करना चाहिए। वीकली एक बार ऐसे जब आप लोग क्लास में आते हैं, क्लास में और भी अच्छा है अगर मंदिर में जा सकते हो भगवान का दर्शन करने। तो ये सब करने से हमारा हृदय में कृष्ण का प्रति आकर्षण बढ़ेगा, और कृष्ण का प्रति जितना आकर्षण हमारा बढ़ेगा, उतना इजीली हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे जा सकता है। ठीक है, मैं एक बार ट्राई करता हूँ शेयर करने का। मेरे को लग रहा है कि हो गया, तो शेयर हो गया। सबको दिख रहा है अभी स्क्रीन फिर से? यस प्रभु जी। ठीक है। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि द प्रोसेस फॉर एस्टेब्लिशिंग वन सेल्फ इन रियल हैप्पीनेस इज दिस प्रोसेस ऑफ बाय कृष्णा कॉन्शियसनेस वी कैन ग्रेजुअली डेवलप अवर रियल हैप्पी। क्या है ये? जब हम लोग ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो जाके रियल इंटेलिजेंस हम लोग को मिलेगा। अभी जो है फॉल्स इंटेलिजेंस बोल रहा है कि हम लोग को मोबाइल फोन में सर्फिंग करना है, ये देखना है, वो देखना है, ये जंक फूड खाना है, सिनेमा हॉल में जाना है, हाँ, दोस्तों के साथ सिर्फ टाइम बिताना ही है, दोस्त के साथ टाइम बिताओ। लेकिन सिर्फ दोस्त के साथ टाइम बिताने के लिए बिताने से हमारा लाइफ विल नॉट बी वेरी गुड इन शेप। हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं रहेगा, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। जो टाइम पे खेलना चाहिए खेलो, जो टाइम पे पढ़ना चाहिए पढ़ो, जो टाइम पे हाँ हरिनाम करना चाहिए, भगवान का कुछ टाइम भगवान के लिए रखना पड़ेगा, तो जाके हम लोग कृष्णा कॉन्शियस में आगे जाएंगे। तो आप लोग चैट में लिखो कौन कितना राउंड चैंट करते हो, मिनिमम कितना राउंड तुम लोग चैंट करते हो वो लिखो।
ठीक है, हरिनाम करते हो ना, हरे कृष्ण महामंत्र फीडबैक में चैंटिंग करते हो, और जो नहीं करते वो लिखो 0। जो एक माला करते हैं 1 राउंड लिखो, मालूम है ना 1 राउंड क्या है, वो लिखो। ठीक है, मैं देखता हूँ, बाद में बात करते हैं। नेचुरली एंजॉय रिलीजिंग स्पिरिचुअल हैप्पीनेस एज वी मेक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। तो इसमें क्या होगा, जितना हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे जाएंगे, उतना हमको कृष्णा कॉन्शियसनेस में आनंद मिलेगा। रिलीजिंग स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, ये जो हैप्पीनेस है, ये जितना हम लोग आगे जाएंगे मिलेगा। हम लोग अगर आगे नहीं जाएंगे तो हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। एज वी बिगिन टू रिलीज, अब क्या होगा, पहले है हमको ये समझना है, अगर हमको रियली हैप्पीनेस चाहिए, रियल हैप्पीनेस, फॉल्स हैप्पीनेस नहीं, रियल हैप्पीनेस, जो हैप्पीनेस आज आया, एक रसगुल्ला खाने से भी एक हैप्पीनेस आता है, बहुत अच्छा रसगुल्ला, एक गुलाब जामुन, गरम गरम गुलाब जामुन खाने से भी हैप्पीनेस आएगा। लेकिन लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस किए थे कि ये हैप्पीनेस क्यों रियल नहीं है, क्यों फॉल्स है, क्योंकि ये हैप्पीनेस हमको ज्यादा गुलाब जामुन खाने का बाद हम लोग को नहीं रहे, हमको एक साथ 100 गुलाब जामुन दे देगा, हम लोग नहीं खा पाएगा जितना भी हमको अच्छा लगता है। क्योंकि ये अच्छा लगने का जो कॉन्सेप्शन है, ये माइंड में है। एक्चुअली हमारा आत्मा को ये अच्छा और बुरा में कुछ फर्क नहीं है। माइंड को लगता है ये खाने से अच्छा लगता है। शरीर थोड़ा देर बाद शरीर का भी तो, शरीर तो एक डेड बॉडी है, ये ऑनली डेड बॉडी, भूमिर आपन आलो वायु खम मनोबुद्धि रे बचाओ, दे के बना है। तो ये जो भूमिर आपन आलो वायु मतलब अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ये सब दे के बना है। तो ये तो डेड बॉडी है, इसका कोई अलग इच्छा नहीं है। लेकिन मन में इच्छा होता है, मन का इच्छा को लगता है मेरा इच्छा है, लेकिन मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा का इच्छा नहीं है। आत्मा ये सब, आत्मा का एक ही इच्छा है, कृष्णा का भक्ति करना। लेकिन वो आत्मा को, इच्छा को हम पीछे छोड़ देते हैं, तो आत्मा को हम भूल ही जाते हैं, हम लोग भूल ही गए हम लोग आत्मा है। तो इसीलिए ये करने के लिए हमको कृष्णा के बारे में सुनना पड़ेगा, श्रील प्रभुपद के बारे में, प्रभुपद का दिया हुआ ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, तो जाकर। तो इसीलिए बोल रहे कि हमको आगे जाना है, तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करना है। ये प्रैक्टिस करने से ये, तो हम लोग रिलीज करेंगे। अब जब हम लोग का अच्छा लगना शुरू होगा कृष्णा कॉन्शियसनेस, जैसे तुम लोग को अच्छा लगता है करके तुम लोग ज्वाइन करते हो, नहीं तो तुमको अगर अच्छा नहीं लगता, तुमको ज्वाइन करने की कोई जबरदस्ती तो नहीं किया, तुम ज्वाइन नहीं करते, नहीं भी कर सकते हो। तुमको अच्छा लग रहा है, तुमको मालूम हो गया कि इसमें आनंद है, तो इसीलिए तुम ज्वाइन कर। उसके बाद क्या होगा, हम लोग जितना स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करेंगे, जितना हम लोग को स्पिरिचुअल हैप्पीनेस होगा, उतना हम लोग मेटेरियल हैप्पीनेस छोड़ देंगे। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एज वी बिगिन टू रियलाइज स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, वी प्रोपोर्शनेटली अबंडन मेटेरियल हैप्पीनेस। तो ये एक बात होगा। तो हमको देखना है हम लोग का मेटेरियल हैप्पीनेस का प्रति इच्छा। मेटेरियल हैप्पीनेस क्या है, जिसका साथ कृष्णा का कुछ संबंध नहीं हो, कृष्णा और कृष्णा का भक्तों का कुछ संबंध नहीं है, ये जो हैप्पीनेस देता है। जैसे कि हम लोग को एक कोई भी मूवी देखने जाना है, तो वो हो गया नेचुरल हैप्पीनेस। अगर नहीं तो कोई अगर बोले कि नहीं मेरे को महावतार नरसिंह मूवी देखने के लिए जाना है, तो वो हो गया स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, क्योंकि वो मूवी में भगवान है। तो हमको देखना है किसमें भगवान के साथ संपर्क है, वो चीज में हमारा आकर्षण वृद्धि हो रहा है, तो वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। और जो चीज में भगवान नहीं है, उसका प्रति हमारा आकर्षण वृद्धि हो रहा है, इच्छा हो रहा है वो सब करने के लिए, उसका मतलब है हम लोग फॉल्स हैप्पीनेस का पीछे भाग रहा है, उसमें हमको थोड़े दिन बाद आनंद नहीं मिलेगा। But as we make progress in understanding the absolute truth, we naturally become detached from this false happiness. हम लोग जितना परम सत्य को जानने के लिए आगे बढ़ेंगे, उतना हमको फॉल्स हैप्पीनेस अर्थात मिथ्या सुख, माया सुख के प्रति हमको हमारा इच्छा, हमको हमको अनासक्ति आएगी, आसक्ति निकल जाएगा। अभी हमारा नेचुरल आसक्ति है ये माया सुख। माया सुख मतलब जो सुख लगता है हमारे लिए, वो सुख क्यों लगता है हमारे लिए, उसको लगता है कि शरीर का लिए कुछ सुख मिलेगा। हमको लगता है गुलाब जामुन खाने से हमारा शरीर का सुख होगा, लेकिन शरीर का सुख अनुभूति है ही नहीं। हमको लगता है ये खाने से मन का सुख होगा, लेकिन मन थोड़े देर बाद 1 2 3 4 5 6 7 गुलाब जामुन खाने के बाद और सुख नहीं देता, सुख नहीं मिलता मन।
मन बोलता है अभी बहुत हो गया, बहुत हो गया, अभी इसको छोड़ो, दूसरा किसी को, दूसरा कुछ चीज में ढूंढो सुख को, क्योंकि मन एक चीज में लगे नहीं रह सकता है। माइंड कैन नॉट बी फिक्स्ड इन वन थिंग, मेटेरियल माइंड। उसको आज ये चाहिए, अभी वो चाहिए, कल वो चाहिए, परसों वो चाहिए। तो आज जो चीज के लिए मन भगा रहा है, 2 घंटा बाद दूसरा कुछ चीज के लिए भगाएगा, तो उसका मतलब ये फॉल्स हैप्पीनेस। तो इसीलिए बोल रहा है, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि somehow or other one is promoted to the stage of Krishna consciousness। उसका क्या लक्षण क्या है, क्या सिम्टम है? तो इस सिम्टम है ये, यम लब्धा च परम लाभम मन्नतेनाधिकं तत जस्मिन् स्थितो न दुखेन दुर्नापि विचालयत्। Upon gaining this, he think there is no greater gain. Being situated in such a position, one is never shaken, even in the midst of greatest difficulty। तो जो मिलने से हमको लगता है कि और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, मेरे को सब कुछ मिल चुका है, ऐसे लगता है कुछ कभी हम लोग को नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग अभी कृष्णा कंस भक्ति में आनंद मिलने का स्तर में नहीं गया, रिलीज नहीं कर रहा है कृष्णा। नहीं तो कृष्णा सब कुछ का आधार है। हमारा पूरा दुनिया जो जो चीज के पीछे भाग रहा है ना, सब कुछ कृष्णा है। कृष्णा है सर्वैश्वर्य पूर्ण, कृष्णा है सर्वैश्वर्य पूर्ण, उसके पास सब कुछ है। सर्वैश्वर्य क्या क्या होता है? सर्वैश्वर्य होता है जैसे बहुत सारे ऐश्वर्य, धन। बाहर का लोग मतलब नॉर्मली पूरा दुनिया का लोग धन के पीछे भागना है, धनैश्वर्य। उसके बाद सौंदर्य, ये जो फिल्म स्टार, मेगा स्टार, इसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि लोगों को सौंदर्य अच्छा लगता है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं मेरे पास सब धन है, तुम आओ, तुमको जो जरूरत है मैं तुमको पूर्ण करेंगे। सौंदर्य के लिए तुम भाग रहा है, तुम मेरे पास आओ, मैं सबसे सब सौंदर्य का आधार मैं हूँ। बाकी जो सौंदर्य तुमको दिख रहा है दुनिया में, वो मेरा सौंदर्य का एक फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन है। वो फ्रैक्शन के पीछे हम लोग भाग रहा है। और जो पूर्ण आधार है, जो पूर्ण सोर्स है, जो कंप्लीट सोर्स है सौंदर्य का, उसको हम लोग भूल गए। तो पूर्ण धन का ऐश्वर्य भगवान के पास है, पूर्ण सौंदर्य का स्रोत है भगवान, कितना सुंदर है भगवान। उसके बाद धनैश्वर्य रूपम, एक है सर्व ऐश्वर्य का, एक है धन, एक है रूप, और एक है ज्ञान, नॉलेज। जिसके पास बहुत नॉलेज है, हाँ? जैसे कोई बहुत नॉलेजेबल, जैसे इसरो का चेयरमैन कोई आ गया, इसरो का चेयरमैन के पास ज्यादा पैसा नहीं है, इसरो का चेयरमैन को दिखने में इतना सौंदर्य नहीं है, लेकिन इसरो का चेयरमैन बहुत ज्ञानी है, नॉलेजेबल है। वो इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल, ये जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन है, वो उसका गाइडेंस में इंडिया स्पेस मिशन में आगे जा रहा है, उसके पास नॉलेज है, तो उसके पीछे लोग भागते हैं, उसका पीछे मीडिया भागते हैं, हाँ? तो उसका पास नॉलेज है। और दूसरा क्या है? दूसरा है वैराग्य, जिसका पास वैराग्य है, रिनाउंसिएशन, जो दुनियादारी के पीछे नहीं है, जैसे साधु संत। आप देखते हो जे ये हम लोग का पास जो ये होता है, कुंभ मेला जब होता है, साधु संत के पीछे मीडिया भागता है, साधु संतों को हेडलाइन में आ जाता है। क्यों? बहुत सारे लोग देख, कुंभ मेला में जाते हैं स्नान करने के लिए, ठीक है, लेकिन वो साधु संतों को देखने के लिए, वो रिनाउंस है, सब कुछ छोड़ के सिर्फ तपस्या में लगा है। हाँ? जब प्रभुपाद ये दुनिया में था, पृथ्वी में प्रकट लीला कर रहे थे, प्रभुपाद बहुत फेमस हो गया, क्योंकि प्रभुपाद के पास ना धन था, ना इतना हैंडसम देखने में था ना, लेकिन प्रभुपाद के पास ज्ञान था, और ज्ञान के साथ प्रभुपाद कंप्लीटली रिनाउंस, उसको कुछ किसी तरह का चीज के प्रति आकर्षण नहीं था, सिर्फ कृष्णा को छोड़, और बाकी जो चीज है वो सब कृष्णा का। ये जो इस्कॉन को फैलाने के लिए पूरा दुनिया भर में प्रभुपाद लगा गए थे, तो उसको उसका अपने लिए कुछ धन नहीं चाहिए, लेकिन भगवान के लिए सब धन लाता। जो भी धन प्रभुपाद को मिल रहा था, वो धन लेके बड़ा बड़ा मंदिर, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहा था पूरा दुनिया भर में, ठीक है।
तो ऐसे था वो वैराग्य, प्रभुपाद का वैराग्य देखते हैं सब आपस में होता है। और क्या है, क्या क्या हुआ, धन हुआ, ज्ञान हुआ, हाँ, उसके बाद रूप हुआ, सौंदर्य, उसके बाद वैराग्य हुआ। और क्या है, और है जैसे और लोग क्या क्या पीछे पीछे भागता है, अ, शक्ति, जो बहुत शक्तिशाली हो, ठीक है, जिसके पास बल है, बहुत शक्तिशाली हो। जैसे हाँ, दारा सिंह का नाम सुने हो कि नहीं मालूम नहीं। ये जो रामायण हुआ था, हम लोग जब छोटे थे देखे थे, वो हनुमान जो बने थे, वो जो सीरियल में, टीवी सीरियल में, वो था दारा सिंह। वो टाइम का बहुत बड़ा फेमस वेट लिफ्टर था, ठीक है, वो वेट लिफ्टर था। तो उसके पीछे वो बहुत फेमस था। हाँ, उसके बाद जो हम लोग देखते हैं जी कि वो ओलंपिक में जो वेट लिफ्टिंग करता है, जो बॉडी बिल्डर जो होता है, ये दिखाता है मेरा कितना शक्ति है, मैं एक लोहा का रॉड लेके इसको बेंड कर दे। लोग देखते रहते हैं, अरे ये कितना शक्तिशाली है, ये कितना शक्तिशाली है, ये देखने में मीडिया आ जाता है, पेपर में फोटो आ जाता है, ये लोहा को बेंड करती है। लेकिन भगवान का आगे ये कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं बोलना भूल गया कि भगवान भी बहुत वैराग्य है, भगवान के पास सब वैराग्य है। भगवान जब वृंदावन में थे बहुत सुंदर लीला कर रहे थे, लेकिन सब कुछ छोड़ के चला गया। इसलिए भगवान में पूर्ण पूर्ण वैराग्य होगा। और भगवान के साथ संपर्क, जो जो संबंध जुड़ता है, वो शुद्ध भक्त का अंदर पूर्ण वैराग्य। उसके बाद शक्तिशाली जो है, वो शक्तिशाली क्या है, वो हाँ, जो बलशाली है उसका पीछे भागते हैं। तो जो बलशाली है उसका पीछे भागते हैं, देखते हैं कि कितना वो बल है। तो भगवान जब 7 साल के थे, 6 साल के थे, वो टाइम पे उन्होंने 7 8, 6 7 8 7 साल की होगा वो टाइम पे, बाएं हाथ में भगवान गिरी गोवर्धन को उठा लिया, एक एक उंगली में गिरी गोवर्धन को उठा लिया। इतना शक्ति किसी का पास होगा, नहीं होगा। हाँ, बालक, हाँ, वो टाइम पे भगवान ये लीला करके दिखाया। और एक दिन नहीं, 1 घंटे के लिए नहीं, 7 दिन 7 रात उसको पकड़ के रखा। सुन के लोग को बोलेगा, लोग ये तो सब माइथोलॉजी है, ये तो सब बकवास गल्प है, ये कहानी है, ये वास्तव नहीं है। लेकिन शास्त्र बोल रहा है इसे, हमको शास्त्रों के आधार में देखना चाहिए। तो भगवान ये सब लीला करते, तू बोला है, पीर जैसे महान शक्तिशाली हाथी को मार दिया कंस का, उधर जब जा रहे थे, हाँ, उसको वो द्वार में था, सिंह द्वार में खड़ा करके रखा था, उसको मार के फेंक दिया। इतना मस्त हाथी था। हाँ, वो हाथी देख के लोग डर जाते थे, डरते थे, लेकिन भगवान उसको मार दिया। कितना बड़ा बड़ा राक्षस आया, उसको सब मार, है ना। तो भगवान के पास पूर्ण शक्ति। तो ऐसे अगर हम लोग देखते हैं कि भगवान के पास सब कुछ है, हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं, यही इसी इसी ये सब चीज के पीछे भागते हैं। किसका पास धन है, किसका पास रूप है, किसका पास ऐश्वर्य है, किसका पास शक्ति, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य है, धन है, ऐश्वर्य है, ज्ञान है, रूप है, वैराग्य है, हाँ, शक्ति है, इसके पीछे हम लोग भागते रहते हैं। तो भगवत गीता कितना साल पहले भगवान बोला, अभी भी भगवान का वो भगवत गीता लेके हम लोग क्लास में। तो ये ज्ञान का आधार है भगवान। तो भगवान को अगर किसी को मिल गया, तो बाकी और कोई चीज के लिए वो भागता ही नहीं, सब कुछ उसको मिल गया। लेकिन हमको समझना चाहिए, इसीलिए हमको सुनना चाहिए। सुनते 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 हम भगवान के प्रति आकर्षण होगा, और हम लोग भगवान को, भगवान के साथ जुड़ जाएगा, भगवान के सुनते सुनते हम अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हम लोग आज इधर ही विराम देते हैं। हाँ, क्योंकि ये मैं टाइम नहीं है, क्योंकि ये मीटिंग का टाइम भी खत्म हो जाएगा। रिकॉर्ड करने के लिए मैं जूम में किया था, तो ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, एंड होने वाला है। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग क्लास में आए, सुने। और किसी का प्रश्न है, 1 2 प्रश्न ले सकते हैं, नहीं तो हम लोग ग्रुप में लिख सकते हैं, मैं प्रश्नों का आंसर दे सकता हूँ। इसलिए प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
हरे हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ठीक है, हम लोग इधर कंप्लीट करते हैं आज का क्लास। सबको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे सादर कृष्ण। प्रणाम। सादर प्रणाम, थैंक यू।